عبدالباق انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہے. سر یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے آئی تھنک غالباً 10 سال بعد مقبوضہ کشمیر میں کل 370 سٹیٹس چینج ہونے کے بعد پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اس میں امپورٹنس کیا ہے کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ کیا کانگریس اگر وہاں جیتتی ہے تو کوئی ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا کشمیریوں کو کہ 370 سٹیٹس پہ وہ کوئی انڈو کر دیں گے اس کو، یا کس طرح دیکھتے ہیں سر الیکشن کو؟ نیشنل کانفرنس اور کانگریس آج الیکشن میں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35A اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے پاسبل ہے. دیکھیں بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی. کشمیر سے جو جرنلزم کے نام پہ صرف نیگیٹو سٹوریز نکلتی تھی، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اگر سوسائٹی ہے اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قسم کی نیوز ہوتی ہیں. کہیں کچھ اچھا ہوتا ہے تو کہیں کچھ برا بھی ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ پازیٹیو نیوز جو ہے کشمیر سے کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے، تو میں نے سوچا میں اس فیلڈ میں انٹر کر لیتی ہوں. ہمیں صاف صاف مسجد نظر آئی، ہمیں صاف صاف سکولز نظر آئے، ہمیں صاف صاف یونیورسٹی بھی نظر آئی، مطلب کافی چیزیں. اور ہم ادھر رہے نا، ہمارے 2 دن ہم رہے تھے، 2 دن ہم ادھر رہے تھے کشمیر، اس LOC سے آگے ہمارے پاس بالکل سگنل نہیں تھے. کشمیر کا جو پریزنس وہ ہندوؤں کی پریزنس بتاتی ہے کہ ہندو کتنے ایکٹیو تھے کشمیر کے اندر. مندر اتنے زیادہ اور ہزاروں سال پرانے کی تاریخ ہے. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں خواجہ آصف، وہ ایک پاکستان کے ٹی وی شو میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا کہ جو 370 ہے 35A ہے اس کو ریسٹور کیا جائے، ختم کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس نے بھی ایسی باتیں کی ہیں. تو جس پہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ بڑے سیخ پا ہو گئے ہیں، امت شاہ بڑے سیخ پا ہو گئے ہیں کہ دیکھو کانگریس اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہے اس کی وہی سوچ ہے جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی سوچ ہے. ہماری فوجیں جان دے رہی، نہ ان کے پاس فوج ہے نہ کچھ ہے. ہماری فوجیں ان کے لیے قربانیاں دے رہی، مجاہدین قربانیاں دے رہے ہیں. 70 میں اسپیشل اسٹیٹس جو ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا وہ اپنے طور پہ بحال ہو سکتا ہے. وہ تو اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. مودی ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لوگ مطلب آٹے کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے ہیں، تو یہ کشمیر کو کیسے آزاد کروائیں گے؟ تو ان کو میسج یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم کشمیر کو بھی آزاد کروا لیں گے. اور وہ دن کب آئے گا؟ کشمیر بنے گا پاکستان. ہاں جی، اب آپ دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر ہو تو پھر ہے. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों. तो दोस्तों, कांग्रेस और PDP के समय एक ऐसा भी था जब कश्मीर के अंदर चुनाव शांत तरीके से होना तो दूर की बात, कश्मीर की गलियों में पत्थर फेंके जाते या फिर गोलियां बरसाई जाती. लेकिन कश्मीर के अंदर आज स्थिति बिल्कुल इसके उलट है, क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी से कश्मीर के अंदर भय का माहौल खत्म हो गया है और कट्टरपंथियों पर भी नकेल कस दी गई है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि आज कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं. लेकिन अब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A के हटने को लेकर कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपने चुनावी वादे में कह रही हैं कि हमें जिताओ तो हम कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A को वापस ले आएंगे. और इसमें खासकर कांग्रेस और PDP सबसे आगे है. और इसी बात की खुशी अब पाकिस्तान भी मनाने लगा है और सोच रहा है कि शायद PDP और कांग्रेस जीत जाए तो कश्मीर के अंदर फिर से आर्टिकल 370 आ जाएगा, जिससे फिर से कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थर फेंकना शुरू हो जाएंगे. लेकिन इस बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने सख्त बयान दिया है और कहा है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है, जिसकी वापसी कभी नहीं होगी. साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पार्टियां जिसमें खासकर कांग्रेस और PDP हैं वो मुसलमानों को बहकाकर अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही थी, अब उनका भी खेल खत्म हो गया है कश्मीर के अंदर से. लेकिन इस सतह पे इतने बड़े बड़े वोट लेके तो अगर पार्टी चेंज होती है तो इसका मतलब ये है कि ग्रास रूट लेवल पे कोई जो है किसी बहुत बड़ी तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है, अगर हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे और हम यकीन रखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों का जो ओपिनियन है उसको किसी न किसी तरीके से एसेस करते हैं. और जिस वक्त हम ये काम कर रहे हैं उस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा एथेंटिक प्रोसेस जो है
किसी भी पब्लिक ओपिनियन को असेस करने का वो यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारी नज़र में ऐसा कोई फ़िलहाल मौजूद नहीं, तो इसलिए हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। तो फैक्ट्स पे आप जब बात कर रहे हैं तो ये एक बुनियादी तौर पे बड़ी अनसेटलिंग किस्म की न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। अगर आप मसला कश्मीर को पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में इसकी पूरी जो कंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूटी है उसको सामने रख के तो देखें, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये है कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो डी ट्रैक हो गया, वो जो आप ड्रिफ्ट उसकी जो है एक अपने ख़ास मौक़िफ़ से एक ख़ास रास्ते पे जो चल रहा था, उससे पाकिस्तान जो है वो उसने एक नया ट्रैक ले लिया, जिसको मैं एक अनट्रैवल्ड रोड इसलिए कहूँगा कि कभी भी हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान ने कभी इस तरह की पोजीशनिंग जो है इससे पहले इख्तियार नहीं की है। इससे पहले उनकी जो पोजीशनिंग रही है वो सीधी सीधी ये है कि वहाँ की एक बड़ी जो है एक पॉपुलर ओपिनियन जो प्रो पाकिस्तान है उसको पकड़ें और उसके पीछे चलते रहें। अब वो आगे क्या क्या ब्लंडर और कैसे कैसे सरेंडर जो है वो कर रही है, ये आप खुद देख लें, जो हमने खुद देखा माजी में कि उस तरफ कभी कोई गया नहीं कि अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसी अपनी प्रॉक्सीज पैदा करते हैं जिनके ऊपर हम एक पॉलिटिकल जो है वो लेवल चस्पा कर देते हैं, लेवल कह रहा हूँ मैं, तो वो जो लेवल है वो हमारे गले पड़ जाएगा आगे चल के, चूँकि वो अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं जो प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है उसको लेके कि ये जनाब जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी अपोज कर रहे हैं, मिलिटेंसी को भी खुले आम सपोर्ट कर रहे हैं। अल्फाज में तब्दीली होती रही है, लेकिन ये है कि एक ओपन सपोर्ट जिसको आप कहते हैं, एक किसी तरीके से हमदर्दी रखने का आंसर जो है वो हमेशा उन लीडरों के बयानात में इस चीज़ में रहा। तो ये आप देख लें तो 3 सतह पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म का यू टर्न लिया है। ऑन डिप्लोमेटिक लेवल पाकिस्तान ने जो है वो बुनियादी तौर पे यू टर्न लिया इस बात पे कि इंडिया अगर इस तरह के कोई ड्रास्टिक डिसीजन करता है, इस तरह के इंडिया के अंदर जो है वो कोई ऐसी तब्दीली भी आ जाती है जो इंटरनेशनल लॉ में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो फिर भी हम जो है उसको अपोज नहीं करेंगे। चूँकि उसमें अगर आप ये कहें कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं था अपोज करने का, तो उन्हीं अरसे में उसी दौरान आपने बेशुमार इस तरह के इंटरनेशनल माज़ूम पे जो है इंडिया को अपोज किया है, अदर देन कश्मीर।